Morning students. Now today we are going to learn about numerical problems related to the Nernst equation. So just recall all those formulas we have studied till now. First one, E naught cell is equal to E naught R minus E naught L. R means the right side of the electrochemical cell, that is the cathodic part of the electrochemical cell. Left means the part of cell where oxidation take place. Okay, so this is the first formula. The second formula is E cell potential. The E naught cell is the cell potential in standard condition, and E cell is the cell potential in non-standard condition, and this is the formula which is used for finding out the cell potential. And for this formula can also be written like this: E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log Q. Okay, or again the third formula is delta Z is equal to minus NF E cell potential, and if in a standard case it will be delta Z naught is equal to minus NF E naught cell. And there is one more formula which is related to the equilibrium constant, and that is given as log Kc is equal to 0.0591 into E naught cell by n. Okay, so there is need to little bit correction. What is the need? The correction should be done in the case of formula of log Kc. It is written as log Kc is equal to E naught cell multiplied by n by 0.0591. Okay, how this was find out, just we have done in our previous class. Just I am reminding you, dear student, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log Kc. In case of this is the equilibrium constant. In case of equilibrium, E cell potential is equal to 0, and so E naught cell minus 0.059 by n log Kc. So this is the total negative part. Move this part into the left side, you will get 0.059 by n log Kc is equal to E naught cell. Then log Kc is equal to, you will get E naught cell multiplied by n divided by 0.0591. Okay, in order to find the value of Kc, there is need to find anti-log multiplied by anti-log. You have to find the value of anti-log of E naught cell into n by 0.0591. Okay, so this is the method to find out the. So these are the 5 formula which are used to solve the numerical problems. So today we are going to solve. So now this is the first question of year 2020. Dear students, see here, calculate delta Z naught. Delta Z naught आपको find out करना है, आपको दिया गया. दिस इज द सेल रिएक्शन. ये 2020 का जो आपको इस साल का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. ये यहाँ पर देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हो रहा है. तो पहला लिखो, व्हाट इज नीडेड, डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट. दिस इज योर क्वेश्चन मार्क, एंड दिस शुड बी इन स्टैंडर्ड केस. एंड व्हाट इज द गिवन. गिवन में आप लिखोगे बच्चों, इट इज गिवन ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन, that is minus 0.76 volt, and the reduction potential of copper ion, that is plus 0.34 volt. इस पर बच्चों ध्यान देना, निगेटिव है या पॉजिटिव है. चूंकि यहाँ एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है वो रिडक्शन पोटेंशियल बनेगा. इट विल बी द राइट साइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एफ की वैल्यू आपको दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है. So there is no need to put the value of R, because we know that
डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है बच्चों, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एफ की वैल्यू दी गई है, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर एक्सचेंज इन आयन, 2 प्लस चार्ज, so it will be 2. Okay, so there is a need to find E naught cell first and put the value here. So we know, what do we know, we know how to find the value of E naught cell. कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट में तो E naught R माइनस E naught L। ओके, तो E naught R आपको यहाँ राइट पोटेंशियल किसका होगा, राइट सेल कौन सा होगा, इट विल बी द कॉपर वन। सो 0.34 माइनस 0.76 volt. So what will be the value, 0.34 plus 0.76, okay, so it will be 1.1 volt. So we have find the value of E naught cell. Now this value should be put in equation 1. Suppose this is the equation 1. So delta Z naught is equal to minus NF E naught cell. So we have to put the value of N, that is 2, value of F, that is 96500, and E naught cell, that is 1.1. So 2 and 1.1, it will become 2.2 minus 96500. So when you will multiply these two numbers, you will get the value, and the value will be negative. So you have to just multiply it and try to find. ओके, जस्ट सी 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2.2 से आपको मल्टीप्लाई करना है और इसके वैल्यू को देखना है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई कर दे आपको 96500 2.2, 0 0 5 2 10, 9 6 12 और 113, 9 2 18। सेम वैल्यू विल बी रिटन हियर 18300 0 0 0 3 831 10 2. Okay, now there are 1 point, so decimal will be here, so it will, the value we will get minus 201,300 joule. So it is the energy, so the value will be this much of joule energy. So this is the question which was asked in the year 2020. This year question was asked in the board examination. So now moving to the next year, we just see what is asked in the year 2019. Okay dear students, okay, now in year 2019 again there is a numerical. E naught cell for the given redox reaction is, just write here given, क्या दिया हुआ है बच्चों, उसको सबसे पहले लिखना। given दिया है आपको E naught cell is equal to 2.71 volt, और ये आपका है सेल रिएक्शन जिसमें आप देख रहे हो कंसंट्रेशन दिया हुआ है कॉपर आयन का और मैग्नीशियम आयन का। कैलकुलेट ई सेल, आपको ई सेल निकालना है। वेरी गुड, क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर। राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब दो क्वेश्चन पूछा गया है जो हमने डिस्कस किया था कि अगर लेस देन 2.71 आप वोल्ट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा जब आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि हम सेल रिएक्शन हमारे पास है, तो हमको सबसे पहले लिखना होगा सेल रिएक्शन के बाद नर्स्ट इक्वेशन, ताकि हम ई सेल फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर n कितना है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, n की वैल्यू आपको 2 दी गई है, 2 आप देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग। अब आपको पता है जो प्रोडक्ट में आयन होगा उसको आप लिखोगे मैग्नीशियम आयन का आपको यहाँ पर डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, कॉपर आयन नीचे में होगा। ओके, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी गई है 2.71 माइनस 0.059, n की वैल्यू आप कितना रखोगे, इट इज गिवन हियर 2 लॉग। अब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बच्चों 0.001, इट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3 m। जस्ट राइट हियर 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई कॉपर का कितना दिया है बच्चों 0.01 m, इट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2 m, 10 टू द पावर माइनस 2 लिख दो।
बहुत आसान है, 2.71 माइनस, अब 0.01 है, लिख लीजिए 0.059/2 लॉग, अब ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनली विल गेट 10⁻⁻1। ओके, सो नाउ 2.71 10⁻⁻1 है, -1 को इधर लेके आ जाओ, 0.059/2 -1 log 10। अब देखिए आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, जस्ट लुक एट हियर, इज इक्वल टू 2.71, अब इसे 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट -0.02, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी होगा, 2 9 ज़ा 18, 295, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी प्लस। नाउ ऐड दिस टू, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 2.71 और आपको 0.0295, what will be the value, 59372.7, so your potential, cell potential will be 27395 वोल्ट। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है ए और बी में, लेस देन 2.71 वोल्ट अगर अप्लाई करोगे एक्सटर्नल पोटेंशियल, व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अब अप्लाई करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि अगर लेस करोगे तो सेल में जो रिएक्शन है एज इट इज होगा, देयर विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर ग्रेटर देन करोगे तो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा कि नाउ द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर टू मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, यानी वो रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन which was asked in year 2019. just see what was asked, 2.74 वोल्ट इसका आंसर है बच्चों, देखो यहाँ पर 2.7395 आ गया, इसको आप राउंड अप कीजिएगा तो 2.74 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, in year 2018 this is the question which was asked, write the cell reaction and calculate the EMF of the cell। जब आपको ऐसे मिले तो देखो यहाँ पर ये आपको है सॉल्ट ब्रिज, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, और इस सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में बच्चों ये पार्ट है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जो हाफ सेल है, और जो राइट साइड में है दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। ओके, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। अब आपको इसके लिए सेल रिएक्शन लिखने की सबसे पहले बात की गई है, तो सेल रिएक्शन बच्चों कैसे लिखोगे, सेल रिएक्शन होगा SN, ये आपका सॉलिड होगा, एंड हाइड्रोजन आयन इन एक्वस फॉर्म, आपको पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और उसके बाद आफ्टर द रिएक्शन SN+2, और हाइड्रोजन जो होगा वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू द बैलेंस देयर इज नीड टू मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन आयन, सो दिस इज द सेल रिएक्शन। ओके, अब चूंकि आपको EMF सेल निकालना है, यानी यू हैव टू फाइंड ई सेल, ई सेल आपको निकालना है, तो देयर इज नीड टू फाइंड ई नॉट सेल। यू नो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो ई नॉट आर देखिए यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पता है कि फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई नॉट H+ जो H2 होता है उसकी वैल्यू 0 वोल्ट होती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो राइट साइड अपना है वो ऑलरेडी 0 है, लेफ्ट साइड का कितना हो गया, SN का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.14 वोल्ट, तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट 0 + 0.14, तो फाइनली इट विल बी 0.14 वोल्ट। इट्स ओके। अब आपको फाइनली यू हैव टू फाइंड द सेल पोटेंशियल, सो इसमें सेल पोटेंशियल क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग। लॉग के बाद देखो बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका रखेंगे, क्योंकि राइट साइड में आपको SN2+ है, तो इसका कंसंट्रेशन पहले आप रखेंगे 0.004, डिवाइड करेंगे इसको, किससे करेंगे डिवाइड, 0.020 से। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, n की वैल्यू आपको यहाँ 2 रखनी है, और 2 रखने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट
तो इसको आप करके देख लेंगे। नाउ दिस इज टू बी प्रोसीडेड बाय यू, आप इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो यू कैन गेट द वैल्यू 0.11 के आसपास बच्चों इसकी वैल्यू आएगी। तो इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ सी व्हाट वाज आस्क्ड इन द 2017 में बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन आपको दिया जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, यानी आपको डेल्टा जी नॉट निकालनी है, क्या होगी आपको पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, और ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले बात की नंबर ऑफ चार्जेस देख लीजिए, कितने चार्ज आपको यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को देखना। ओके, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के देन आपको इसको यहाँ पे ई नॉट सेल दिया हुआ है और आप उसको कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये सब जो भी क्वेश्चन पूछे गए देख लीजिए। एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, 0.36 वोल्ट दिया हुआ है, एफ की वैल्यू रख दी हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट यू हैव गॉट द वैल्यू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।